Hello and welcome everybody. BODMAS rule. When we have to find the value of an expression involving more than one mathematical operations, then the sequence in which various operations are executed is given by, what is the sequence they are talking कि अगर एक mathematical एक्सप्रेशन है उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हैं, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो व्हाट इज द सीक्वेंस टू फॉलो, हाउ टू स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन. द फर्स्ट इज बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट. सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर के पार्ट्स को सॉल्व करना है. देन इज ऑफ. नाउ रिमेंबर ऑफ एक्चुअली इंप्लाइज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल. डिवीजन वी ऑल नो दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन सिंबल मीन्स मल्टीप्लिकेशन. Addition plus subtraction minus. Now remember, off is also multiplication and multiplication is also multiplication. What is the difference between them? The difference between them is ये off वाला multiplication हमें division से पहले करना है और multiplication वाला multiplication हमें division से बात करना है. Another important point. As per the rule, it says that addition should be done first and later we should do subtraction. But अगर sequence में आ जाए, सीरीज में आ जाए, पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस आ जाए, आप यू डेफिनेटली गो इट विल नॉट चेंज योर आंसर. प्लस और माइनस में कोई भी आप पहले कर सकते हैं. सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आप कोई भी पहले कर सकते हैं, इट विल नॉट चेंज योर आंसर. बट रिमेंबर दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन शुड बी डन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. मूविंग टू द ब्रैकेट्स. What is the order of bracket? We have different types of bracket. The first one you can see, that's a circular bracket and the first to be solved. The second one you can see is a curly bracket. After circular bracket we should solve the curly bracket. I'll give them the number. And finally we have a square bracket, the last one to be solved. So there's a specific order of brackets also. While executing off, next point it says, while executing off it is replaced by multiplication and solved as multiplication. First it says is that then if there is a vernaculum bar, it is executed even before applying the BODMAS rule to the remaining part of the expression. What is this? We'll solve it. We'll solve a question, then we'll understand this bar. So these are the basic rules. Let us now go ahead and start solving the questions to understand the concept of BODMAS better. Now we have an example here and let us apply the BODMAS rule to solve this question. Now remember here we have a different operation. The question is 9 plus 12 divided by 6 minus 3 multiplied by 2. Now we have multiple operations, namely the division, multiplication, addition and subtraction. And the order will be, the first comes division, after division comes multiplication, after multiplication comes addition and finally we have subtraction. Now remember I told you addition subtraction में कोई भी आप पहले कर सकते हैं. अगर order में पहले subtraction आ जाए बाद में addition आ जाए, no problem at all. So the first step will be division. Division is between 12 and 6. I'll rewrite the question like this. This is 9 plus 12 upon 6. Division को क्या लिख सकते हैं? Upon लिख सकते हैं. This is 12 upon divided by 6 minus 3 multiplied by 2. It will just make you to understand the question in a easier way. 12 divided by 6 को 12 upon 6 लिख लिया. तो 12 upon 6 क्या हो गया? 12 को 6 से डिवाइड करेंगे. What do we get? We get 2 upon 1. I'll just simplify here. 12 upon 6. या तो आप दोनों नंबर्स को 6 से सिंप्लीफाई कर लो. 6 2 जा 12 हो गया, 6 1 जा 6 हो गया.
दिस इज 2/1, 2/1 इन अ फ्रैक्शन, 2/1 क्या होता है 2 हो जाता है, 1 की कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं है, उसको हटा दीजिए, या फिर 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली भी हमारा आंसर 2 आ जाता है। जस्ट गोइंग वेरी बेसिक इन दिस। तो ये जो वैल्यू हो गई हमारी, ये क्या हो गई 2। अब इसको आई विल रिप्लेस दिस 12/6 एंड आई विल राइट डाउन 2 हियर। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। हमारा इक्वेशन विल बिकम, सॉरी एक्सप्रेशन विल बिकम 9 + 2 - 3 × 2। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिवीजन करके जो वैल्यू 2 आ रही है वो हमने यहां पर ले ली है। नाउ आफ्टर डिवीजन कम्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज हियर 3 × 2। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 3 × 2। नाउ हमने डिवीजन कर लिया, लेट्स विल डू द मल्टीप्लिकेशन। Do the multiplication, 3 × 2 is 6. So our equation will now be 9 + 2 - 3 × 2 is 6. Now I am going very basic. आप चाहे तो इसको एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हैं, but I am not doing that because this is the first question. I will go very basic. After we solve some questions, then we will go, how we can actually do this question in a single step में हम कैसे इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। But क्योंकि पहला क्वेश्चन so going very step by step. अब क्या किया हमने, पहले डिवीजन कर लिया, 12/6 2 बना लिया। अब 3 × 2 हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 2 6 बना लेंगे। आफ्टर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये 6 आ गया। नाउ लेट अस डू द एडिशन। एडिशन इज 9 + 2। 9 + 2 is 11. I'm writing here -6. 11 कहाँ से आ गया, 9 + 2 करके। एंड फाइनली लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन। 11 - 6, my answer is 5. This is how we apply the BODMAS rule. We go by the rule. First we do the division, then multiplication, then addition, and then subtraction. Answer is option number C is the answer, 5. Moving on to the next question. Expression is 18 - 16 divided by 4 plus 4 multiplied by 5. Let's go step by step. सबसे पहले डिवीजन करेंगे 16 divided by 4, and before that I'll just write it down in this way. 18 - 16 divided by 4 हम लिखेंगे 16/4 plus 4 multiplied by 5. Now 16 divided by 4 we know 4 4s are 16 होता है, तो इसे आप कट कर लो, 4 1s are 4 4s are। न्यूमरेटर में 4, डिनोमिनेटर में 1, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमरेटर में 4 रह जाएगा। दिस इज 18 - 4 plus 4 multiplied by 5. Now after division do the multiplication, 4 multiplied by 5 which is 20. So this will become 18 - 4 plus 20. Now अब यहां पर इस क्वेश्चन में एक डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये कि पहले सब्ट्रैक्शन आ गया है, बाद में एडिशन आ गया है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले एडिशन कर लेते हैं तो 4 + 20 24 हो जाएगा, और उसके बाद -18 कर लेंगे 6 हो जाएगा, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। अगर आपने पहले प्लस करने का सोचा, पहले 4 और 20 को ऑपरेट करने का सोचा, तो याद रखिए ये 4 नहीं है, उसके पहले का साइन भी लेना होगा, तो वो हो जाएगा -4 + 20। एंड वी हैव डिस्कस्ड, अगर एक नंबर माइनस का है एक प्लस का है तो ऑपरेशन माइनस का होगा, 20 - 4 होगा, वो 16 हो गया। और साइन लगेगा बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 20 है, उसका साइन प्लस है, सो दिस इज +16। तो यहां से ये हो जाएगा 18 और आगे लिख दीजिए +16। रिमेंबर ये -4 का साइन अब वहां नहीं है, -4 हमने ऑपरेट कर लिया, -4 और +20 ये +16 आए हैं, तो हम इसे लिखेंगे 18 + 16 विच इज 34, which will give us the answer option C. However, this will be slightly confusing. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि ये -4 है, ये +20 है, एग्जाम में पहले ही हम टेम्परामेंट में रहते हैं। तो उसके लिए आप एक चीज याद रखो कि अगर माइनस और प्लस में कोई भी पहले, अगर पहले माइनस आ रहा है तो आप पहले माइनस कर लो सीक्वेंस में। यहाँ पहले 18 - 4 है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, 18 - 4 कर लेते हैं। 18 - 4 इज 14 एंड 14 + 20 सिंपली आंसर आ गया सेम 34। कोई कंफ्यूजन करने की आपको जरूरत नहीं है। जनरली स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक कर देते हैं, वो मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो ये 4 तो और ले लेते हैं कि पहले हम प्लस करेंगे, तो 4 और 20 को वो 24 बना लेते हैं, पर 4 का वो माइनस का साइन नहीं लेते, और उसके बाद वो 18 - 24 करते हैं तो उनका आंसर माइनस में आ जाता है। सो दिस इज द एरर कि अगर आप पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले आपने प्लस करने का सोचा तो याद रखना कि आप 4 के पहले का साइन भी लेना होगा।
तो ये 4 प्लस 20 24 नहीं होगा, ये -4 प्लस 20 प्लस 16 होगा। और उसके बाद जो प्लस 16 की वैल्यू आई है वो हमने 18 के बाद में रख दी है, तो ये माइनस का साइन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वो 18 प्लस 16 34 होना चाहिए। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने आपको बताया कि आप अगर सीक्वेंस में पहले माइनस आ रहा है पहले माइनस कर लो, 18 माइनस 4 14, 14 प्लस 20 34, और ऊपर भी हमारा आंसर 34 ही है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टॉपिक इज वेरी सिंपल, जस्ट बी लिटिल पेशेंस, यू कैन डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको संभल कर चलने की जरूरत है। जल्दी जल्दी में अगर आपने किया तो आप ज़रूर मिस्टेक कर बैठेंगे। और कई बच्चे क्या हैं कि उन्हें बॉड मास आता है, सिंप्लीफिकेशन भी आता है, सब कुछ ठीक है, पर एग्जाम में वो भूल जाते हैं कि हाँ तो बॉड मास अप्लाई करना था। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में नहीं, आप कहीं पर भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करें जहाँ पर कई सारे ऑपरेशन है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है, प्लस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप ये ऑर्डर फॉलो करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस टॉपिक में है, ये एवरीवेयर इट इज एप्लीकेबल, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी बेसिक वन, 37 minus 18 divided by 3 multiplied by 5. Let us first do the division. 18 divided by 3. 18 को 3 से divide करेंगे. We know 3 6 is 18, so this value becomes 6. Now I am not writing in the numerator and denominator form. This is 37 minus 6 multiplied by 5. Now we have to multiply 6 and 5. अच्छा, 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई करते समय आप 6 का माइनस का साइन ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। दोनों केसेस में वैल्यू 6 होगी, सॉरी वैल्यू सेम रहेगी। कैसे? आई विल जस्ट शो यू। दिस इज, या तो आप -6 इंटू 5 करो, ये प्लस है, 5 का कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो पहले तो माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, -6 इंटू 5 हो जाएगा 30, तो ये आंसर -30 आ रहा है। और अगर आप इसका साइन नहीं भी लेकर करो, सिर्फ सिंपली आप 6 इंटू 5 करो तो भी ये 30 आएगा और उसके पहले का माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा। सो वट एवर वे यू डू इट विल बी सेम। सो मल्टीप्लीकेशन में उतना ये इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, पर आपको साइन का ध्यान रखना जरूरी है। 37 माइनस 30, आंसर इज 7, ऑप्शन नंबर बी। Next question, 15 plus 27 divided by 9 multiplied by 7. Now here I can see the division 27 divided by 9. 27 divided by 9, I do it separately. I know 9 3s are 27 होता है, so I'll write 3 here. This will be 15 multiplied by 3, sorry 15 plus 3 multiplied by 7. Now do not forget to do the multiplication first. We will do 3 into 7, which will give us 21. 21 plus 15. Our answer is 36, which is option number D. Next question. 11 plus 32 divided by 8 multiplied by 4 minus 13. Let us apply the BODMAS rule here. 11 plus 32 divided by 8 multiplied by 4 minus 13. First of all, सबसे पहले डिवीजन कर लीजिए। 32 divided by 8 is 8 4s are 32, so this part will give us 4. Let us write down the term. It is 11 plus 4 multiplied by 4 minus 13. After the division, let us do the multiplication. 4 into 4, this will give us 16. My expression will become 11 plus 16 minus 13. 11 plus 16 is 27, and 27 minus 13, our answer is 14. Answer is option number A. Next question is 23 minus 7 multiplied by 8 divided by 4 plus 16. Let us first do the division. 8 divided by 4, this part will give us 2. That becomes 23 minus 7 multiplied by 2 plus 16. Let's multiply 7 and 2. This will give us 14. So it will become 23 minus 14
प्लस 16. एज आई टोल्ड यू बिफोर, अगर माइनस प्लस में पहले माइनस आ जा रहा है तो आप पहले माइनस भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. 23 माइनस 14 इज 9. 9 plus 16, our answer is 25, which is option number B. Next question, simplify. 15 multiplied by 144 divided by 12 minus 3 multiplied by 6 plus 4. सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे. डिवीजन इज 144 डिवाइडेड बाई 12. 144 12 का स्क्वायर है तो उसको 12 से आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 12 एज द आंसर. दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 3 इंटू 6 इज 18 प्लस 4. नाउ question says simplify. 15 multiplied by 144 divided by 12 minus 3 multiplied by 6 plus 4. Now let us start with the division first. सबसे पहले डिवीजन कर लेते हैं. This is 144 divided by 12. Now 144 12 का स्क्वायर होता है. जब आप उसको 12 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 12 आएगा. So 144 divided by 12 is 12. So this is 15 मल्टीप्लाइड बाय 12. दिस ये पूरा पार्ट 12 हो गया. माइनस 3 इंटू 6 प्लस 4. नाउ 15 इंटू 12 एंड दिस इज 3 इंटू 6. ये दो मल्टीप्लीकेशन है, दोनों एक साथ करते हैं. 15 इंटू 12 इज 180 माइनस 3 इंटू 6 इज 18 प्लस 4. सो बोथ ऑफ द मल्टीप्लीकेशन आई हैव डन एट वंस. दोनों हमने एक साथ कर दिया है. अब यहां पर आप देखो, पहले माइनस आ रहा है, बाद में प्लस आ रहा है. इवन इफ यू डू सब्ट्रैक्शन फर्स्ट, योर आंसर विल नॉट चेंज. तो अगर सीरीज में पहले माइनस बाद में प्लस आ रहा है तो पहले माइनस कर लेते हैं. 180 माइनस 18 इज 162 और इसमें आप प्लस 4 कर दीजिए. आवर फाइनल आंसर विल बी 166. दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर सी. अगर आप पहले प्लस करते, माइनस 18 प्लस 4 करते तो वो माइनस 14 आता, और 180 माइनस 14 तो भी आपका आंसर 166. सो आंसर विल बी सेम. आप पहले माइनस करें या पहले प्लस करें, इट विल नॉट चेंज. लेकिन पहले प्लस करने में आपको ये माइनस 18 का माइनस भी साइन लेना जरूरी है. अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन से सिंप्लीफाई. 13 मल्टीप्लाइड बाय 91 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 minus 7 multiplied by 4. So let us write down first 13 multiplied by 91 divided by 13 plus 98 divided by 14 multiplied 3 minus 7 multiplied by 4. Let us start with the division first. This is the division. 91 divided by 13. See, 91 divided by 13, इस पूरे टर्म को दो तरीके से कर सकते हैं. इट इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 91 डिवाइडेड बाय 13. तो या तो आप इन दोनों को आप डिवाइड कर लो. सो 13 7 जा 91 वी नो, तो ये पार्ट 7 हो जाएगा. सो दिस विल बी 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 विच विल अगेन कम 91. या फिर अनदर थिंग यू कैन डू इज यू कैन राइट इट 13 मल्टीप्लाइड बाय 91 अपॉन 13. और यहाँ से ये 13 और ये 13, क्योंकि ये 13 जब मल्टीप्लाई होगा 91 से, व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 91 इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द न्यूमरेटर. तो ये 13 कैंसिल कर लेंगे तो भी आंसर हमारा 19. वॉट जैसे आप करना चाहें. या तो अगर आप 91 और 13 डिवाइड कर लो, ये 7 हो जाता है, एंड 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 वो फिर से 91 आ जाएगा. प्लस 98 डिवाइडेड बाय 14, दिस इज 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 4. So this is 13 multiplied by 7, this is 91, plus 7 multiplied by 3, this is 21, minus 7 multiplied by 4, it is 28. So 91 plus 21, this is 112, or subtracting 28 from that, so this is 84 is the answer. That is option number A.
Now you can see that the expressions are getting slightly lengthier, so just to give you a little more practice कि कई सारे अगर numbers आ जाएं तो आप confuse ना हो, very easily step by step you can go approach it and you can get your right answer. Question is not at all difficult, but just need a step by step approach, that's all. Answer is option A. Question says 66 divided by 6 multiplied by 8 minus 74 divided by 2 multiplied by 3 plus 21 multiplied by 4. Let us do a division first. 66 divided by 6, this part will give us 11 multiplied by 8 minus 74 divided by 2, this is 37 multiplied by 3 plus 21 multiplied by 4. Now I have three multiplications. This is the first, 11 into 8, this will give us 88 minus 37 multiplied by 3, this is 111 plus 21 multiplied by 4, this is 84. Now from here there is a slight confusion. Confusion is 88 is a smaller number, it is in plus, and 111 is a bigger number, it is in minus. तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं, ये कन्फ्यूजन है कि छोटा नंबर 88 है, 111 बड़ा नंबर है, कैसे माइनस करें? तो या तो आप यहाँ से 88 को 111 इससे माइनस करें। इसको माइनस करने के लिए हमें करना ये होगा कि एक नंबर हमारा ये प्लस 88 है और ये हमारा माइनस 111 है। एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो ऑपरेशन हमारा माइनस हो जाएगा, 111 माइनस 88 दैट इज 23, और साइन जो है वो बड़े नंबर 111 का आएगा जो कि माइनस है, तो ये माइनस 23 हो जाएगा। अच्छा, माइनस 23 और प्लस 84 ऑपरेट करना है, माइनस 23 और प्लस 84 ऑपरेट करना है, तो एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का, तो ऑपरेशन माइनस हो जाएगा, 84 माइनस 23, 84 माइनस 23 इज 61, साइन जो है बड़े नंबर का 84 का लगेगा, वो प्लस 61। एक तो ये मैं टेक्निक हो गई कि आंसर 61 आ गया। अनदर सिंपल वे इज कि 88 प्लस में है, 84 प्लस में, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, प्लस वाले नंबर्स दोनों प्लस कर लीजिए। दिस इज अ सजेस्टेड मेथड कि जो भी प्लस के नंबर है उनको प्लस कर लो। 88 प्लस 84 इट इज़ 172, और अब इसमें से ये माइनस वाला नंबर आप माइनस कर लो, आंसर इज 61। सो दैट इज़ अ बेटर अप्रोच कि अगर एक पहले हमारा नंबर है छोटा, उसके बाद जो माइनस करना है वो बड़ा नंबर है, और उसके बाद एक और नंबर प्लस करने का है, तो पहले जो प्लस प्लस वाली वैल्यूज़ है इनको प्लस करके फिर माइनस आप करिए। और अगर बाद में हम यहाँ पे 84 नहीं होता तो फिर हम ये नॉर्मल जो इंटीजर का अप्रोच होता है कि एक प्लस का एक माइनस का नंबर है तो क्या करना है, उससे भी हमारा आंसर 61 ही आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा आंसर, वी आर गेटिंग द सेम आंसर है 61। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Next question, find the value of 333 multiplied by 33 multiplied by 3 divided by 33 divided by 3. Now understand, when there are two times division, यहाँ पर देखिए लास्ट में divided by 33 divided by 3, ये divided by 33 and divided by 3, तो ये जो डिवीजन के बाद जो दो टर्म्स आ गए, पहले divided by 33 उसके बाद divided by 3, ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। Your expression will be something like this. This is 333 multiplied by 33 multiplied by 3। अच्छा, 3 डिवाइडेड बाय 33 है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, और उसके बाद अगेन डिवाइडेड बाय 3 है तो ये भी जो 3 है वो 1/3, मतलब ये भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह जो डिवीजन के बाद जो दोनों डिवाइडेड बाय 33 ये भी डिनोमिनेटर में और डिवाइडेड बाय 3 ये भी डिनोमिनेटर में, तो उसको हमने 1/3 लिख दिया है। Another way of writing this same expression will be 333 multiplied by 33 multiplied by 3, और डिवीजन के लास्ट वाले ये 33 और ये डिवीजन बाय 3, ये दोनों कहाँ पर आप ले लो, ये डिनोमिनेटर में ले लो, 33 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दोनों हमने, ये लास्ट वाले जो 33 और 3 हैं ये दोनों डिवीजन में थे, तो ये दोनों हमने कहाँ ले लिए, डिनोमिनेटर में ले लिए। Now numerator 33 and denominator 33 you can cancel, numerator 3 and denominator 3 we can cancel, हमारा आंसर हो जाएगा 333। that is the final answer, that is option number C।
Question says find the value of 666 multiplied by 6 multiplied by 66 divided by 6 divided by 66 divided by 3. So यहाँ पर ये जो टर्म्स डिवीजन के बाद तीन टर्म्स आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6 divided by 66 and divided by 3, they all will go to the denominator. Our expression will be 666 multiplied by 6 multiplied by 66 upon 6 multiplied by 66 multiplied by 3. अभी देखिए आप ये जो डिनोमिनेटर्स में जितने भी टर्म लिए हैं उनके डिवीजन के साइन हम सब ने उनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज डिवीजन वाली है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो डिनोमिनेटर में जाएंगे पर आपस में, जैसे 6 और 66 यहाँ पर आप देखो आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 66 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. उनका डिवीजन का साइन है, उसका काम क्या है, वो उनको डिनोमिनेटर में ले जाएगा और डिनोमिनेटर्स के जितने टर्म्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे. अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 6 and 6 वी कैन कैंसिल, 66 and 66 वी कैन कैंसिल एंड 666 वी कैन डिवाइड बाय 3. We can divide this as 3 2s are 6, 3 2s are 6 and 3 2s are 6. Answer is 222. A rather simple question actually, option number B. Next question, what is the value of 19 minus 13 plus 15 multiplied by 3 divided by 5? 19 minus 13 plus 15 multiplied by 3 divided by 5. Now here there is a problem actually. If you look at the division, 3 divided by 5 cannot be done. हम 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, ये इतने एक्सप्रेशन को देखो, इतना, this complete part you take, 15 multiplied by 3 divided by 5. This will become 15 multiplied by 3 divided by 5. Now this will actually become 15 into 3 अपॉन 5. ये ऐसा हो जाएगा, 5 जो है डिनोमिनेटर हो जाएगा, 15 और 3 न्यूमिनेटर बन जाएंगे, 5 दोनों का डिनोमिनेटर बन जाएगा. एंड नाउ वी कैन डिवाइड 15 एंड 5 एज 5 1 जा 5 3 जा. डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 3 into 3 इन द न्यूमिनेटर, दिस विल गिव मी 9. तो ये हमारा अप्रोच होगा सॉल्व करने का, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 करने का. So I'll get my answer as 9. This will be 19 minus 13 plus 9. पहले आप माइनस कर लो, 19 minus 13, this will is 6. 6 plus 9. My answer is 15. Option number C. Question says 99 divided by 11 divided by 3. तो डिवीजन के बाद ये दोनों वैल्यूज 11 एंड 3 ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, 99 न्यूमिनेटर में आ जाएगा. मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2. तो सबसे पहले ये डबल डिवीजन है, ये 99 अपॉन में 11 इंटू 3 होगा ना. ये 11 9 जा 99 कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9 कैंसिल कर दिया, तो ये पूरा जो हमारे तीनों टर्म्स है ये 3 बन गए हैं. मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेते हैं, क्योंकि अब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 51 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 कर लो, ये आपको 3 दिल जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2. नाउ वी आर डूइंग स्टेप बाय स्टेप, अब कर लेते हैं, अब डायरेक्टली वी कैन जंप स्टेप्स. 24 डिवाइडेड बाय 8 3 हो गया, 3 इंटू 2 ये 6 हो गया. मल्टीप्लाई कंप्लीट करो, 3 इंटू 5 ये हो गया 15 प्लस 51 माइनस 3 इंटू 2 दिस इज 6. 51 प्लस 15 दिस इज 66 minus 6, answer is 60. Answer is option number B. Moving on to the next question. It includes mixed fractions, that is 7 whole 1 by 2 plus square bracket 15 upon 3 multiplied by 3 upon 5 plus circular bracket 13 divided by 2 whole 1 upon 6 circular bracket close square bracket close multiplied by 3. So question is slightly lengthy,
but very simple. Let us first step, let us convert all the mixed fractions to fractions. जितने भी mixed fraction है हम उसे fraction में लाएंगे. एक 7 whole 1/2 है, एक 2 whole 1/6 है. इन दोनों को हम fraction में लाएंगे. And you know mixed fraction converted to fraction is improper fraction बन जाते हैं वो. 7 whole 1/2 मल्टीप्लाई 7 and 2. 7 into 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 हो गया. इसमें +1 कर लीजिए, 14 + 1 दिस इज 15. दिस इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम टू सेम 2. सो इट बिकम्स 15/2. Our next fraction is 2 whole 1/6. Multiply 2 and 6. 2 into 6 is 12 and 12 plus 1 is 13/6. So my two fractions are 15/2 and 13/6. Our question becomes 7 whole 1/2 is 15/2 plus square bracket 15/3 multiplied by 3/5 plus circular bracket 13 divided by 2 whole 1/6 is 13/6. Circular bracket close, square bracket close, multiplied by 3. Now here, as per the BODMAS, the first to be solved is this bracket, and in the bracket also we solved a circular bracket. तो BODMAS के हिसाब से सबसे पहले हम bracket solve करेंगे और bracket में भी सबसे पहले हम ये circular bracket solve करेंगे. So that's 13 divided by 13/6. Now 13 divided by 13/6, हमें 13 को डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन 13/6 से. सो अंडरस्टैंड द रूल इज 13 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे और उसके बाद जो फ्रैक्शन आता है उसे रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे. किसी भी नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, हमें 13 को डिवाइड करना है 13/6 से, तो डिवीजन को मल्टीप्लाई और डिवीजन के बाद का फ्रैक्शन रेसिप्रोकल कर दीजिए. 13/6 हो जाएगा 6/13. So I have 13 multiplied by 6/13 which is 13. ये न्यूमरेटर का पार्ट बन जाएगा into 6. ये न्यूमरेटर बन गए दोनों और अपॉन में ये 13 डिनोमिनेटर हो गया. You can cancel the 13 and 13. We get 6. Solving this circular bracket, I get 6. Now let us proceed. This is 15/2 plus square bracket 15/3 multiplied by 3/5 plus this complete part is 6. Square bracket close, multiplied by 3. Now we have to do the as per the BODMAS. अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस आई विल सॉल्व. 15/3 multiplied by 3/5. 15/3 multiplied by 3/5. Now for this we multiply the numerator and numerator. फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप दोनों न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों डिनोमिनेटर्स आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. दैट इज 3 into 5. Now this numerator 3 and 3 will be cancelled and divide 15 by 5 as 5 ones are 5 threes are. I get the numerator 3, denominator 1. Remember, अगर हमारा डिनोमिनेटर 1 है उसे इग्नोर कर दीजिए, तो ये पूरा सॉल्व करके हमारी वैल्यू 3 आ रही है. इट्स कंप्लीट. ऑन सॉल्विंग आई एम गेटिंग 3. 3 3 कट कर दिया, 5 3 15 कर दिया.